এটা ডাঙৰ খবৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এবাৰ আবেগিক হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কৈছে এবাৰ যদি মোৰ জেলত মৃত্যু হয় বা মই যদি মৰিও যাওঁ তেনেহলে আপোনালোকে দুখ নকৰিব দিল্লীবাসীক উদ্দেশ্যে এনেদৰে জেল যোৱাৰ পূৰ্বে বিশেষ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীক তেখেতে কৈছে মই আকৌ জেল যাম মই দেশক বচাবৰ বাবে আকৌ জেলত সোমাম এনেদৰে এতিয়া দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু তেখেতৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন অন্ত পৰিব 2 জুনত আমি সবিস্তাৰে খবৰটো লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিম জেলত মোৰ মৃত্যু হলেও দুখ নকৰিব আপোনালোকে দুখ নকৰিব বুলি উল্লেখ কৰিছে দিল্লীবাসীক উদ্দেশ্যে বিশেষ বাৰ্তা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দেশক বচাবলৈ মই আকৌ জেলত সোমাম মই আকৌ জেললৈ যাম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু মোক যিমান কষ্ট দিলেও মই সহ্য কৰিম দিল্লীবাসীৰ বাবে মই এই কষ্ট সহ্য কৰিম বুলি কৈছে কাৰাগাৰত থাকিলে মোৰ আপোনালোকৰ বাবে চিন্তা হয় কাৰাগাৰত যেতিয়া থাকো মই আপোনালোকৰ বাবে চিন্তা কৰো কৈছে আৰু আপোনালোক ভালে থাকিলে আপোনালোকৰ এই কেজৰিৱালো ভালে থাকিব আৰু মই জেলত থাকিলেও দিল্লীৰ সকলো কাম চলি থাকিব যি কাম দিল্লী চৰকাৰে কৰি আছে মই জেলত থাকিলেও সেই কাম চলি থাকিব বুলি কৈছে জেলৰ পৰা আহিয়ে দিল্লীৰ মাতৃ ভগ্নীক মাহে 1000 টকা কৈ দিম যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল মাহে দিয়াৰ আৰু সেই কথা পূৰণ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু এবাৰ মই কিমান দিন জেলত থাকিম নাজানো কিমান দিনলৈ মই জেলত যাব লাগিব মই নাজানো কিন্তু মই 2 জুনত আত্মসমৰ্পণ কৰিম 2 জুনত তেখেতৰ যেহেতু অন্তৱৰ্তীকালীন জামিনৰ অন্ত পৰিব 2 তাৰিখে অন্ত পৰিব কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন আৰু তাৰ পিছতে তেখেতে পুনৰ জেললৈ যাব লাগিব পুনৰ তিহাৰ জেল যোৱাৰ পূৰ্বে আবেগিক হৈ পৰিছে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জেলত যদি মোৰ মৃত্যু হয় বা মই যদি মৰিও যাওঁ তেনেহলে দুখ নকৰিব মই কিয়নো এগৰাকী ৰোগীয়া মানুহ আৰু দেশক বচাবলৈ মই আকৌ জেলত সোমাম দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে মই জেলত আকৌ সোমাম কৈছে মোক যিমান কষ্ট দিলেও ইতিমধ্যে মোক বহুত কষ্ট দিছে মই ৰোগীয়া মানুহ মোক ইনসুলিন দিয়া নাছিল মই ডায়াবেটিছৰ পেচেণ্ট মোক ইনসুলিন দিয়া নাছিল অন্যান্য ঔষধ মোক ল'বলৈ দিয়া নাছিল গতিকে মোক হাৰাশাস্তি কৰিছিল কষ্ট দিছিল আৰু এবাৰ যিমান কষ্ট দিলেও মই আপোনালোকৰ বাবে সহ্য কৰিম আপোনালোক ভালে থাকিলে আপোনালোকৰ কেজৰিৱালো ভালে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মই জেলত থাকিলেও দিল্লীৰ সকলো কাম চলি থাকিব যিসমূহ বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা শিক্ষা বিনামূলীয়া 24 ঘণ্টা বিজুলী সকলোবিলাক চলি থাকিব এনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যোৱাৰ পূৰ্বে আৰু জেলৰ পৰাই ওলাই আহিয়ে মই মাতৃভগ্নী দিল্লীবাসীৰ আই মাতৃসকলক যেনেদৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল যে মাহে ভাত্তা দিয়া হ'ব মাহিলী ভাত্তা 1000 টকাকৈ সেই কাম মই সম্পাদন কৰিম 2 জুনত মই আত্মসমৰ্পণ কৰিম বুলি উল্লেখ কৰিছে 2 তাৰিখে যেহেতু অন্ত পৰিব অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিল্লীৰ আবকাৰী কেলেংকাৰী গোচৰত যেহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু তাৰ পাছতে কেইবাদিনো প্ৰায় 50 দিন তেখেতে জেলত আছিল আৰু জেলত থাকোতে যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু তাৰ পাছত এনেদৰে দিল্লীবাসীক আহ্বান জনাইছে যে দেশক বচাবলৈ মই আকৌ জেলত যাম যদি মোৰ জেলত মৃত্যু হয় মই যদি মৰিও যাওঁ মোৰ কোনো দুখ নাই আৰু আপোনালোকেও দুখ নকৰিব দিল্লীবাসীৰ এগৰাকী সন্তান হিচাপে মই কাম কৰিছো বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু মোক যিমান কষ্ট দিলেও মই সকলো কষ্ট সহ্য কৰিম কাৰাগাৰত থাকিলে মোৰ কিন্তু আপোনালোকৰ বাবে চিন্তা হৈ থাকে আৰু আপোনালোক যদি ভালে থাকে তেনেহলে মইও ভালে থাকিম আপোনালোকৰ এই কেজৰিৱালো ভালে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছে মই জেলত থাকিলেও দিল্লীৰ সকলো কাম দিল্লীবাসীৰ বাবে নিৰন্তৰ অৱধাৰিতভাৱে চলি থাকিব জেলৰ পৰা আহিয়ে দিল্লীৰ মাতৃভগ্নীক মাহে 1000 টকা কৈ দিম বুলি উল্লেখ কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আৰু এবাৰ মই কিমান দিন জেলত থাকিব লাগিব সেই কথা নাজানো তিহাৰ জেল যোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে পুনৰবাৰ মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ 2 জুনত মই আত্মসমৰ্পণ কৰিম যেহেতু 7 দিনৰ বাবে তেখেতে জামিন আবেদন কৰিছিল বা আবেদন দাখিল কৰিছিল তেখেতে অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি আবেদন কৰিছিল কিন্তু সেই আবেদন নাকচ কৰিলে নাকচ কৰাৰ পাছতে এতিয়া 2 জুনত অন্ত পৰিব আৰু 2 জুনত আত্মসমৰ্পণ কৰি তেখেতে পুনৰ জেললৈ যাব লাগিব আৰু সেই জেল যোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে এতিয়া দিল্লীবাসীক উদ্দেশ্যে আবেগিক হৈ পৰিছে এতিয়া অৰবিন্দ কেজৰিৱাল মন্তব্য আছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি কৈছিল আমি মন্তব্য আগবঢ়োৱাৰ চেষ্টা কৰিম चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं परसों मुझे सरेंडर करना है परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे पर मेरे हौसले बुलंद हैं देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं इसका मुझे फक्र है
इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना। ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज,
महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं, मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज प्रार्थना करेंगे तो वो जरूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं, उन्होंने जिंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सबने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है।